Hello students, in the last few lectures we have been studying about the continuous time Fourier series, and in this lecture we are going to start with the continuous time Fourier transform. So the continuous time Fourier series, as we know, that is the representation of any periodic signal as a linear combination of complex exponential or complex sinusoids. Now let us extend this concept for signals that are not periodic, right? Because not all the time the signals that are being applied as an input to the LTI systems are periodic. Sometimes they are periodic, sometimes they are not periodic, right? So we know what is the advantage of representing any signal as a linear combination of periodic signal, right? So why should we limit this advantage to only periodic signals, right? We should also be doing that for signals that are not periodic, right? So in this lecture we are going to extend this concept for the signals that are not periodic. So for that, let us consider a periodic pulse train which has duty cycle 2t1 upon t, and this is the same example that we have already determined the Fourier series of in lecture number, I think lecture number 14-15, where we studied about the Fourier series representation, right? So this is the same example. Now the duty cycle of this periodic pulse is 2t1 upon t, where t is the time period of the wave and t1 is this segment where the pulse is on, right? So minus t1 to t1 is 2t1, right? So 2t1 is basically is the time where this pulse is on, or it is equal to 1 and it is equal to 0 for other time, right? So 2t1 is the time when the pulse is on, and total time is from minus t2 to upon t2, which is t, right? Minus t upon 2 plus this total time is t, and total on time is 2t1, right? So duty cycle is 2t1 upon t, and we know that the harmonic function came out to be a sinc function. ये जो आया था फंक्शन हमारा continuous time Fourier series जब हमने इसकी मालूम की थी, तो this was the harmonic function that came out to be ak equal to 2 sin k omega naught t1 divided by k omega naught, जिसको हम कहते हैं सिंक फंक्शन, सिंगुलरिटी फंक्शन है, ये सिंक फंक्शन है, right? अब एज द पीरियड टी इंक्रीज, राइट, होल्डिंग t1 कांस्टेंट, अगर हम t1 को कांस्टेंट रखें और पीरियड को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि ड्यूटी साइकिल आपका कम होता जाएगा. इफ़ वी इंक्रीज द पीरियड t, फॉर एग्जांपल वी स्ट्रेच माइनस t अपॉन 2, इसको स्ट्रेच कर दें, बढ़ाते जाएं, और पल्स जो ऑन है, इसकी जो ऑन ड्यूरेशन है दैट रिमेन सेम, राइट. तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी 2t1 अपॉन t. सो फॉर एग्जांपल t जो था वो पहले 1 था, देन ड्यूटी साइकिल वुड बी 2t1, देन व्हेन t इज 10 देन ड्यूटी साइकिल वुड बी 0.2t1, राइट. सो द ड्यूटी साइकिल वुड बी decreasing as the t increase by holding t1 constant, right. So when period becomes infinity, right, जब हमने इसको बढ़ा दिया, right, period becomes infinity means there is only one pulse left, ये वाली पल्स बचेगी, बाकी ये पल्सेस जो हैं वो गायब हो जाएंगी, right. So when period becomes infinity, तो ड्यूटी साइकिल 0 हो जाएगा, and when duty cycle is 0 and there is only one pulse, then we say this waveform is not periodic, x of t is no longer periodic, right. So remind you, when we are studying about the continuous time Fourier series, तो हमने ये 3 ग्राफ प्लॉट किए थे हार्मोनिक फंक्शन के with different duty cycles, right. When t was equal to 4t1, duty cycle is 50%, when t is 8t1 it is 25%, and t is 16t1 it is 12.5%, right. तो हार्मोनिक फंक्शन को हमने प्लॉट किया था फॉर डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स, एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑन द हार्मोनिक फंक्शन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़र्क क्या पड़ रहा है, कि जब आप ड्यूटी साइकिल 50% है तो
majority of the components या majority of the energy या majority of the power of the signal is contained in the DC component and the first and third harmonic. बाकी में कम होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम ड्यूटी साइकिल बढ़ा रहे हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इवन जा रही है, एंड यहाँ पे ड्यूटी साइकिल और कम कर दिया तो ये जो इसकी एक्सपेंशन है डिस्ट्रीब्यूशन की वो इन्फानाइट होती जाएगी. ठीक है, जब ड्यूटी साइकिल 1% हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फ्लैट होता जाएगा. ये जो हार्मोनिक फंक्शन है इसके जो हार्म्स हैं ये फ्लैट होते जाएंगे. तो दिस व्हाट हैपेंस व्हेन सिग्नल की पल्स सिग्नल की हम ड्यूटी साइकिल कम करते जाएंगे. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम पीरियोडिक वेव फॉर्म टू अपीरियोडिक वेव फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे पीरियोडिक है, यहाँ पे भी पीरियोडिक है, यहाँ पीरियोडिक है. लेकिन वी आर गोइंग टुवर्ड्स the point where the signal becomes aperiodic when duty cycle becomes 0. तो जब ड्यूटी साइकिल 0 हो जाएगा तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, so as the period increases the sync function widens and its magnitude falls. That जो हमने देखा पिछली स्लाइड में. So as the period approaches infinity, जब period infinity हो जाएगा, when period is infinity the signal is aperiodic. So when the period reaches infinity the continuous time Fourier series harmonic function AK becomes an infinitely wide sync function with zero amplitude. जो एम्पलीट्यूड AK वर्सेस फ्रिक्वेंसी हम प्लॉट करेंगे, जो हार्मोनिक फंक्शन है या स्पेक्ट्रम उसका प्लॉट करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ जो हार्मोनिक्स होंगे वो इन्फिनिटली वाइड होंगे और उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 0 होगा. तो मतलब इस तरह का स्पेक्ट्रम जो है दैट इज इनकंक्लूसिव, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के स्पेक्ट्रम का. राइट, सो दिस इज बिकॉज the continuous time Fourier series is not valid for aperiodic signal. Right, when time period is infinity the signal becomes aperiodic और उसका जो हार्मोनिक फंक्शन आएगा या जो उसका स्पेक्ट्रम होगा उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वन ऑफ द कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस फिगर. राइट, सो वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नॉर्मलाइजिंग द कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हार्मोनिक फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दें. नॉर्मलाइज करने से क्या होगा कि वो जो प्लॉटिंग है उसकी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले जो हमने स्लाइड में फिगर्स देखी कि k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो जो हार्मोनिक वाइड होता जा रहा है. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम हार्मोनिक को वाइड करते जाएं, उसकी एक्सपेंशन को वाइड करते जाएं, हम एक्स एक्सिस पे k मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी प्लॉट करें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिछली जो स्लाइड में हमने फिगर्स देखी उसमें फ्रिक्वेंसी वाइड होती जा रही है. अगर हम फ्रिक्वेंसी वाइड करने के बजाय सिग्नल को कंप्रेस करते जाएं, हार्मोनिक फंक्शन को कंप्रेस करते जाएं, ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा. कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, ये हमारा जो नॉर्मल हार्मोनिक फंक्शन है स्क्वायर वेव का. ठीक है, इसको अगर नॉर्मलाइज करना है तो बजाय के ओमेगा नॉट के हम उसको ओमेगा से प्लॉट करें, सिर्फ फ्रिक्वेंसी से प्लॉट करें, वर्सेस फ्रिक्वेंसी प्लॉट करें. ठीक है, वर्सेस फ्रिक्वेंसी प्लॉट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी जितनी वाइड होती जाएंगी उतना सिग्नल कंप्रेस होता जाएगा. कंप्रेस होता जाएगा तो नॉर्मलाइज जो है वो होता जाएगा. तो ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा करने से सिग्नल की जो एक्सपेंशन है वो नहीं होगी, क्योंकि व्हेन ड्यूटी साइकिल इज़ वेरीइंग ओमेगा उतनी वेरी होगी. ठीक है, ओमेगा वेरी होगी. ड्यूटी साइकिल वेरीइंग मीन्स के t is varying. Right? T1 is same. When capital T, the time period is varying. Right? So when time period varies, the duty cycle varies and omega also varies. ठीक है, तो जब हम सिग्नल को प्लॉट करेंगे वर्सेस ओमेगा तो एक्सपेंशन नहीं होगी. राइट, ओनली द स्केलिंग ऑफ द एक्स एक्सिस वुड चेंज. ठीक है, एक्स एक्सिस की स्केलिंग चेंज होगी लेकिन सिग्नल एक्सपेंड नहीं होगा. इन दिस स्केलिंग is not changing, scaling is same in all the cases, so signal seems to expand. Right?
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का जो स्केल है उसको वेरी करेंगे, उसको कंप्रेस करते जाएंगे, तो क्या होगा कि सिग्नल हमें एक्सपेंड होता नज़र नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसीज स्क्वीज होती नज़र आएंगी। ठीक है, तो लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख लें कि एस टी इंक्रीजेज द एनवेलप इज सैम्पल्ड विद क्लोजर एंड क्लोजर स्पेसिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी साइकिल 50% है। अब ये जो प्लॉट हैं ये नया जो हार्मोनिक फंक्शन है उसके हैं, ठीक है, जो नॉर्मलाइज हार्मोनिक फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ओमेगा वर्सेस ओमेगा हमने प्लॉट किए हैं, नॉट वर्सेस के ओमेगा नॉट। ठीक है, तो आप देखें कि ये 0 डीसी कंपोनेंट है, ये 2 ओमेगा नॉट कंपोनेंट है, इसी तरह ये जो होगा 4 ओमेगा नॉट, सपोज 6 ओमेगा नॉट और वट एवर, राइट। तो ये अब यहाँ पे आप आ जाएं, जब ड्यूटी साइकिल 25% है, यहाँ पे अगेन सेम, लेकिन ये जो कंपोनेंट 2 ओमेगा नॉट था अब ये 4 ओमेगा नॉट हो गया। ठीक है, हाउएवर द शेप ऑफ द फंक्शन एंड हियर इज सेम, शेप सेम है, लेकिन एक्सेस की स्केलिंग जो है ना वो कंप्रेस हो गई। अब आपके पास जहाँ पे 2 ओमेगा नॉट था अब यहाँ पे वो 4 ओमेगा नॉट हो गया है। ठीक है, सिमिलरली हियर मज़ीद कंप्रेस हो गया, जहाँ पे आपके पास 2 ओमेगा नॉट था यहाँ पे 4 ओमेगा नॉट हो गया, अब यहाँ पे 8 ओमेगा नॉट आ गया। तो अब नॉर्मलाइज फंक्शन में ये हो रहा है कि बजाय इसके कि सिग्नल एक्सपेक्ट हो, आपकी जो वाई एक्स एक्सिस की जो स्केलिंग है वो कंप्रेस होती जा रही है। ठीक है, एंड आप देख रहे हैं कि एज द ड्यूटी साइकिल इज डिक्रीजिंग द सैम्पल्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, सैम्पल जो है वो एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे हैं। And as t approaches infinity, the modified CTFS जो नॉर्मलाइज हार्मोनिक फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन की तरह नजर आएगा, as you can see in this figure, right? Here t is I have increased t to some very high value, not infinity but एक बहुत बड़ी वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, और when we plot the sinc function at higher values of t, you can see that the sinc function look like a continuous function, right? So when it looks like a continuous function, then ak, the formula for ak you know is equal to 1 upon t integral of minus t upon 2 to t x of t e power minus j k omega naught t, right? So this would look like this. Now it has become continuous from minus infinity to infinity, right? Since when t is infinity, the signal becomes aperiodic, right? This is ak for one period, and this is now entire signal because it is aperiodic, right? So ak formula would somehow be written in this form, and the envelope of harmonic function, let's call it x of j omega, right? Let's call the envelope of this harmonic function which looks like a continuous function as x of j omega, right? उसको हम कहते हैं कि ये x of j omega है, क्योंकि अब ये continuous time function है। ठीक है, एंड ये जो इक्वेशन आएगी ये इसका बेसिकली एनवेलप होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई ए के की when t is approaching infinity is basically the equation for this envelope। ठीक है, तो x of j omega को हम लिख सकते हैं it is equal to minus infinity to infinity x of t e power minus j omega t, right? So this is actually a modified equation of harmonic function। ठीक है, when time period is infinity, nearly infinity, या आप कह सकते हैं कि when signal is aperiodic, right? So harmonic function, the envelope of the harmonic function when signal is aperiodic is given by this equation x of j omega equal to minus infinity to infinity x of t e power minus j omega naught t j omega t dt, right? So this equation is basically the Fourier transform of x of t। Fourier transform जो x of t के हम लेते हैं ये उसकी equation है, and the inverse Fourier transform is given by x of t 1 upon 2 by
minus infinity x of j omega e power j omega t and d omega. तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस कहते हैं. एंड दिस वन इज when you want to convert from t domain to omega domain, and this is from omega domain to t domain back. तो ये इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ aperiodic signals, और representing the signal as a linear combination of complex exponentials. और ये इक्वेशन है when we want to convert the signal back into time domain. Now let's solve an example in which we are given a function x of t equal to e power minus 2t into u of t. So it is basically decreasing exponential and multiply by unit step function. So if we plot this function in time domain, you can see that at t equal to 0 its value is 1, right? Because at t equal to 0 u of t is 1, and this would be e power minus 0. E power minus 0 is 1, right? So at t equal to 0 it is 1, and after that it is decreasing exponentially, and you can see that it is nearly reaching to 0 in 2.5 seconds, right? So you can have idea from here the time period of this exponential is time constant of this exponential is 0.5 seconds, which is 1 upon 2, right? So this is actually an example of an aperiodic signal. ठीक है, ये aperiodic signal है, और दूसरा ये causal signal है. Causal signal means it is single sided. It has only non-zero values for when t is 0 or greater than 0, right? So it is a causal signal basically, and it is decreasing exponential. It is a single sided, right? And we have to find out the Fourier transform of this. So we know how we can actually determine the Fourier transform. Fourier transform is nothing, it is actually envelope of the harmonic function that we know from last few slides कि x of j omega क्या है basically, right? तो x of j omega क्या करेगा, ये envelope of the harmonic function करेगा, जो कि actually इसकी Fourier transform हो गई. Now this is the equation to find out the Fourier transform, और इसमें हम substitute करते हैं values. X of t we know it is equal to e power minus 2t into u of t, वो हमने substitute कर दी. अब we know u of t is 0 when t is less than 0, right? तो इंटीग्रल की जो लिमिट है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 दिस फंक्शन वुड बी 0, right? इनकी प्रोडक्ट 0 होगी. तो लेट अस रीराइट दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस 2t इंटू e पावर माइनस j ओमेगा t dt, right? अब ये हमें फंक्शन मिला x of j ओमेगा इक्वल टू दिस, इसका हमें इंटीग्रल लेना है, right? We can multiply both exponentials and then we can go ahead and find out simplify it further. सिंप्लीफाई करने से हमें ये फंक्शन मिला e पावर माइनस और 2 प्लस j ओमेगा t, right? अब we can find out the integral of this, and then we can substitute the limit, right? So integral of exponential, you know, whatever is the coefficient of t in the power of exponential would be divided. So in this case it is minus 1 upon 2 plus j omega, and then we can substitute the limit, which is from 0 to infinity. So after substituting limit, when we substitute upper limit here, you get e power minus infinity, right? E power minus infinity is basically 0, and when you substitute the lower limit, you get e power minus 0, e power 0, right, which is equal to 1. So this negative sign and this negative sign would cancel each other, and you will get x of j omega equal to 1 upon 2 plus j omega, and this is the equation for the envelope of harmonic function, right, for the signal given in the last slide, which is decreasing exponential.
Now we can see that this function is complex. ये जो हार्मोनिक फंक्शन हमारे पास आया ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये जो एनवेलप आया या एक्स ऑफ जे ओमेगा आया, इन अदर वर्ड्स, राइट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको वर्सेस फ्रिक्वेंसी हमें प्लॉट करना है, लेकिन अब हमें इसको पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ेगा और इसका फेज़ मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड फेज। लेट अस फाइंड आउट the magnitude and phase of x of j omega first, and then उसको अलग-अलग प्लॉट करते हैं, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी, मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा एंड फेज वर्सेस ओमेगा। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा x ऑफ j ओमेगा का, कैसे मालूम करेंगे, 2 + j ओमेगा है, तो उसके लिए आपको या तो आप उसको रैशनलाइज कर दें, फिर उसका आप मैग्नीट्यूड मालूम करें, या मैग्नीट्यूड आप इज स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एंड स्क्वायर रूट, राइट। यू नो ऑलरेडी किस तरह मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। सिमिलरली फेज एंगल इज बेसिकली टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, राइट। तो माइनस साइन यहाँ पे आया क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, आप इसको रैशनलाइज करेंगे एंड देन फाइंड आउट। आई होप यू कैन डू इट। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 2 ये फेज, ठीक है। Now we have magnitude of the function, we have phase of the function। अब हम मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी अलग से प्लॉट कर सकते हैं और फेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी अलग से प्लॉट कर सकते हैं। तो व्हेन वी प्लॉट मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी, तो आपको ये प्लॉट मिला, ठीक है। व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0। अब प्लॉट कैसे करेंगे, आप एक टेबल बना लें, वन कॉलम ऑफ द टेबल वुड बी ओमेगा एंड अदर कॉलम ऑफ द टेबल वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, 0 डालें, फिर 1 और -1 डालें, फिर 2 and -2, देन 3 and -3, 4 and -4। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे आप उसको प्लॉट करें और फिर ग्राफ पेपर पे उनको आप पॉइंट्स को ड्रॉ करके और प्लॉट कर लें, तो आपको ये एनवेलप ड्रॉ हो जाएगा, जो कि इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा। दिस इज फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, इन अदर वर्ड्स, राइट। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का वो पार्ट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी प्लॉट करते हैं हम। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन इज हाईएस्ट व्हेन ओमेगा इज 0, ठीक है। ओमेगा जब 0 है तो इट्स मैक्सिमम है, जो कि किसके बराबर है, 0.5 के। सो एट ओमेगा इक्वल टू 0 द मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन इज 0.5 विच इज़ हाईएस्ट, राइट। इसके अलावा आप देखें कि ये इसका मैग्नीट्यूड है जो 0.5 है या 1/2 है। 1/2 मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस रियल पार्ट, राइट। So the magnitude of the function is reciprocal of this real part. Similarly, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, जो हमारा रियल पार्ट है जिसको हम कॉर्नर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, ये -2 और 2, राइट। तो रियल पार्ट पे जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 मल्टीप्लाई बाय द रियल पार्ट, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी वैल्यू है व्हेन फ्रिक्वेंसी इज 2 और -2, राइट। अब इसको हम कहते हैं डबल साइडेड स्पेक्ट्रम। डबल साइडेड स्पेक्ट्रम मीन्स कि 0 से पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज पे और 0 से नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज पे ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, राइट। अगर हम इसको डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, वर्टिकल अराउंड वर्टिकल एक्सेस, ये वर्टिकल एक्सेस है ना 0 पे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, राइट, एंड लेट मी ड्रॉ द लाइन। अगर मैं सही से यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। सीधी नहीं है लेकिन ठीक है। सो दैट नाउ यू कैन सी ऑन द राइट ऑफ दैट एंड लेफ्ट ऑफ दैट वी हैव 2 पोर्शंस इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का इमेज है, राइट। इसको हम कहते हैं ये डबल साइडेड स्पेक्ट्रम है। पॉजिटिव वैल्यूज़ पे और नेगेटिव वैल्यूज़ पे दोनों पे आपको सिमिलर काइंड ऑफ मिलेगी। जो वैल्यू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 2 पे है वही वैल्यू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू -2 पे है। इसी तरह जो वैल्यू फ्रिक्वेंसी 4 पे होगी वही -4 पे होगी। हम जो है वो फेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करेंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें वर्सेस फ्रिक्वेंसी ओमेगा होगा एक कॉलम, दूसरा कॉलम होगा एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक है।
और ओमेगा की वैल्यू 0, -1, 1, -2, 2, 3, -3 एंड सो ऑन, और फिर उनको प्लॉट करेंगे तो आपको उसका फेज रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फेज यहाँ पे क्या है। आप देख सकते हैं कि इट इज़ ब्लो 90 डिग्री, और यहाँ पे आप देखें ब्लो -90 डिग्री। ठीक है, तो फेज जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी प्लॉट करते हैं, पुट करते हैं, सपोज ओमेगा इज इन्फिनिटी, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? 90 डिग्री, राइट। एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? -90 डिग्री। ठीक है, तो आप देखें कि इसकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो +90 एंड -90 हैं। ठीक है, तो वी कैन से कि फेज ऑफ दिस फंक्शन इज बिटवीन π/2 एंड -π/2, +90 डिग्री एंड -90 डिग्री पे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे ये -90 होगा और माइनस इन्फिनिटी पे ये +90 होगा। ठीक है, ये एक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। इसी तरह एट फ्रीक्वेंसी 2 and -2 the phase angle is 45 degrees, which is π/4। you can see कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये तकरीबन 45 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ सही तरह तो ये -45 हो जाएगा। सो एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 इट इज़ -45 एंड इट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू -2 इट इज़ 45 डिग्री। और 0 पे इसका फेज आप देखें कि ये 0 है। ठीक है, एट 0 द फेज ऑफ दिस इज 0, तो इसका फेज 0 है 0 पे। ऑब्वियसली टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 इज 0, क्योंकि ओमेगा अगर 0 है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो फेज 0 है। तो दिस इज हाउ द फेज रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, काजल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सिंगल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लुक लाइक। सो इन जनरल अगर एक्सपोनेंट जो है वो इस तरह की इक्वेशन हो, e⁻at इंटू u ऑफ t वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1/a² + ओमेगा² आएगा, और जो फेज है वो टेंजेंट इनवर्स ω/a आएगा। ठीक है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ω/a। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा ओमेगा 0 पे वो 1/a आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रियल पार्ट, एंड ये जो -a और a पे इसका एम्पलीट्यूड होगा वो √2/2 × a। और फेज तो हमेशा इसका π/2 और -π/2 के दरमियान होगा, और एट -a एंड a इट वुड बी -π/4 एंड -π/4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दिस इज हाउ जनरली कोई भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या उसका जो फेज एंड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो जनरली इसी तरह आता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे जो एक वैल्यू है जो चेंज हो सकती है वो a की वैल्यू है। ठीक है, तो a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका शेप किस तरह होगा। अदरवाइज द शेप वुड बी सेम, ओनली इट वुड बी आइदर एक्सपेंडिंग, ठीक है, या कम होगा या ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ओनली अदरवाइज द शेप वुड लुक लाइक सेम, वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट आएंगे। नाउ डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल। इन दिस केस द सिग्नल इज एक्सपेंडेड इन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस, राइट, नेगेटिव वैल्यूज पे भी है, पॉजिटिव वैल्यूज पे भी है, सो इट इज़ अ डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। And if you plot in time domain, it would look like this, right? So in negative values of t, it is decreasing as the t increases, right? In negative side towards negative n, towards -infinity, and for positive infinity, it is also decreasing, right? So rate of decrease is same on both sides, right? So it is a double-sided decaying exponential, and we have to find out the Fourier transform of this, right? So we know the formula for Fourier transform is this one, और यहाँ पे अब x of t की जगह हम पुट करेंगे e⁻² मैग्नीट्यूड ऑफ t e⁻j⍵t। अब यहाँ पे we can break this function into two parts,
one part when value of t is 0 to infinity, and other when it is from minus infinity to 0, right? So one part when it is from minus infinity to 0, this one, right? This would be from minus infinity to 0, and another part from 0 to infinity. ठीक है, तो इस फंक्शन को we will break it into two segments, एक segment from minus infinity to 0 and दूसरा segment from 0 to infinity. So after breaking this into segment, इसको हमने क्यों किया? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फंक्शन को हमने is to get rid of this magnitude function, because t can be positive and negative, right? So for negative values of t we have changed the limit of the integral, and for positive value of t we have changed limit of the integral, right? Now we don't have to write down the modulus here, right? So this is because we want to simplify it further, right? तो अब यहाँ पे आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रल ले लें. अब ये जो पार्ट है ये तो वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया एग्जैक्टली, राइट? दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक एग्जाम्पल नंबर 1. अब इसका हमें फर्दर इवेलुएट करना है. So simplifying it further by multiplying these exponentials and this one inside the integral, and then integral लेंगे. इसका इंटीग्रल जो आएगा 1/2 माइनस जे ओमेगा, एंड इसका फिर लिमिट पुट करेंगे हम, एंड ये आएगा माइनस 1/2 प्लस जे ओमेगा, एंड इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल और उसकी लिमिट हम पुट करेंगे. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट यू विल गेट एक्स ऑफ जे ओमेगा 1/2 माइनस जे ओमेगा प्लस 1/2 प्लस जे ओमेगा. ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसकी एलसीएम लें एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये आ जाएगा 4/4 प्लस मेगा स्क्वायर. अब ये जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है दैट इज़ अ रियल फंक्शन, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और इमेजिनरी फंक्शन. ठीक है, ये एक रियल वैल्यू फंक्शन आया. तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा. देयर इज नो फेज एंगल 0 आएगा. फेज एंगल 0 क्यों आएगा? क्योंकि इसका रियल है फंक्शन. इमेजिनरी पार्ट इज 0, so tangent inverse imaginary upon real would be always 0, right? So इसका एक ही ग्राफ प्लॉट होगा. ओके, मैग्नीट्यूड एक्स ऑफ जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा आएगा. ठीक है, तो उसी सेम तरीके से जैसे हमने किया कि एक टेबल बनाए आप, एंड टेबल में एक कॉलम ओमेगा की वैल्यूज़ हों, दूसरी जानिब एक्स ऑफ जे ओमेगा हो. ठीक है, एंड वेरी ओमेगा फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यूज. ठीक है, एंड देन कनेक्ट दीज डॉट्स टुगेदर टू गेट दिस. तो इसका शेप जो है वो तकरीबन वही आया जो एग्जाम्पल नंबर 1 में था. ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी जनरली स्पीकिंग कि अब मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम आया वो 2/a आया. ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 1 इट वाज 1/a, नाउ इट इज़ 2/a. और इसी तरह ये जो -a to a है ये वैल्यू यहाँ पे 1/a के बराबर होगी. ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 में ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/2a आया था. ठीक है, तो थोड़ी सी चेंज है, अदरवाइज जनरली द शेप इज सेम. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 we have to determine the Fourier transform of the impulse function, unit impulse function. Unit impulse function is given by x of t equal to delta t when t equal to 0, and it is equal to 0 when t is not equal to 0. Right? So you know the definition of impulse function. So now instead of x of t we will substitute delta t e power minus j omega t. Right? अब इसका इंटीग्रल जो है वो आप evaluate करें. If you remember the shifting property of impulse, तो वो हम प्रॉपर्टी अब यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा. राइट, सो एट t इक्वल टू 0 प्रोडक्ट ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन एंड e पावर 0 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ 0. राइट, जब t की वैल्यू 0 है, when t इज इक्वल टू 0, दिस product of exponential and this delta function would be simply delta of 0, because exponential would be equal to 1, e power 0 is 1, and the product of these two functions would be delta of 0. तो जब अंदर delta of 0 आएगा, delta of 0 का इंटीग्रल क्या आएगा? the area under the curve 1 आएगा. right?
So when t is equal to 0, the integral would be equal to 1, and when t is not equal to 0, delta of t is 0, right? So for the values of t other than 0, this integral would be 0, right? So x of j omega is simply equal to 1. इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? x of j omega equal to 1 for different values of omega, right? Whatever the value of omega is, you will always get 1, right? So we can say the spectrum of delta function or the impulse function, it spread all over the frequencies. All frequencies पे वो spread है equally है 1 है. So this is time domain representation of impulse function. और इसका जो x of j omega हम प्लॉट करें वर्सेस फ्रिक्वेंसी, तो ये एक फ्लैट लाइन आएगी, ठीक है, 1 आएगा हमेशा. whatever the frequency is, it will always be 1. So this is the magnitude response or the frequency response of delta function. Now another example, in fact this is exercise problem, and ये वही है, एक pulse function है minus t1 to t1, और x of t is equal to 1 when as long as t is between minus t1 and t1 and it is equal to 0 otherwise, right? इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम करनी है, एंड ड्रॉ द स्पेक्ट्रम, जो भी आएगा उसका स्पेक्ट्रम आएगा. अगर कॉम्प्लेक्स है तो मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों करेंगे, अगर रियल आता है तो आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे. नाउ दिस एग्जांपल नंबर 4 इज अबाउट inverse Fourier transform, right? So we are given a Fourier transform of any signal. ये उसकी Fourier transform है, x of j omega equal to 1 when omega is less than w and it is equal to 0 when omega is greater than w, right? तो ये उसका स्पेक्ट्रम है x of j omega का वर्सेस ओमेगा. स्पेक्ट्रम ये दिया हुआ है from w to minus w, it is 1 and it is 0 elsewhere, right? तो हमें मालूम करना है कि ये किस सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, x ऑफ t क्या है, ठीक है. तो हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करनी पड़ेगी. तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है, इट इज इक्वल टू दिस, x ऑफ t इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ j ओमेगा एंड e पावर j ओमेगा t d ओमेगा, ठीक है. यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x ऑफ j ओमेगा की, एंड x ऑफ j ओमेगा जो है वो इट इज़ 1 when frequency is between minus w and w, right? So we can actually rewrite the integral in this form, right? So 1/2 pi minus omega to minus w to w e power j omega t multiplied by 1, right? Because between minus w and w the x of j omega is equal to 1, otherwise it is 0, right? e power j omega t d omega. अब इसको हम इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रल को, ठीक है. इंटीग्रल इवेल्युएट करने से हमें ये मिला फंक्शन, और अब इसको हमें मज़ीद लिमिट पुट करनी है. लिमिट पुट करने के बाद आपको ये फंक्शन मिला e पावर j ओमेगा टी, ये अपर लिमिट हमने पुट की, जे डब्ल्यू टी माइनस e पावर माइनस जे डब्ल्यू टी, ये हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली. अब अगर आप थोड़ा गौर करें इस पर, तो यू कैन सी कि ये जो एक्सपोनेंट है, इसको अगर हम 2j से डिवाइड कर लें तो दैट वुड लुक लाइक a sine function, right? So let us rewrite this function in this form. 1/pi t को हमने अलग कर दिया, तो ये आ गया e पावर जे डब्ल्यू टी माइनस e पावर माइनस जे डब्ल्यू टी डिवाइड बाई 2j. अब ये जो है ये साइन फंक्शन है, ठीक. तो x ऑफ t वुड बी इक्वल टू साइन डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई पाई टी. ये अगेन सिंक फंक्शन आया, ठीक है. तो यू कैन सी कि जब आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक पल्स हो तो उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक आएगा, और सिंक का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करेंगे तो वो पल्स आएगा, ठीक है. तो ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, ठीक है. तो सिंक फंक्शन एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज w/pi एंड इट इज़ 0 एट माइनस pi/w एंड pi/w. ये इसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली द टाइम डोमेन सिग्नल, जिसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा
वो एक पल्स आएगा, सिंगल पल्स फ्रॉम -w to w. In last few examples, like example number 1, 2 and 3, we determine how to find out the Fourier transform of aperiodic signals. Now let us find out कि periodic signals की Fourier transform कैसे मालूम करेंगे. So for this, let us consider a signal x of t whose Fourier transform is x of j omega, right? And let's say that x of j omega is a single impulse of area 2 pi at omega equal to omega naught, right? At some frequency value, right? Let's say the Fourier transform is single impulse function, right? At omega equal to omega naught, right? So it has magnitude for only one value of omega, right? Other than that it is 0, right? So when any function have magnitude response equal to non-zero for any single frequency, and other than that frequency the magnitude is 0, it would look like spike, right? अगर उसको आप प्लॉट करेंगे फ्रिक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड, तो वो एक सिंगल स्पाइक होगा जैसे इम्पल्स होता है, ठीक है. तो लेट्स से कि इस तरह का एक हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है. उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ जे इक्वल टू 2 पाई एंड ये हमारा शिफ्टेड इम्पल्स आ गया, ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. इट मीन्स वो स्पाइक जो है वो ओमेगा नॉट पे आएगी, ठीक है. उसको हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इसका जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई एन इंटीग्रल होता है, तो 1/2 पाई कैंसिल हो गए, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, राइट. तो उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई किया. सो नाउ इसका जो ये किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ टी का, और एक्स ऑफ टी की इक्वेशन क्या है उसको हमें मालूम करने के लिए व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, राइट. सो लेट अस फाइंड आउट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है. तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला में उसकी एक्स ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, विच इज 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू ई पावर जे ओमेगा नॉट डी ओमेगा. अब ये देखें, अब ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए. अब आपको सिंपली ये मिला, ठीक है, एक्स ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी एंड डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू ई पावर जे ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा. अब यहाँ पे आप अगर इफ यू रिमेंबर, हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इम्पल्स की. यू कैन यूज़ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी इफ एनी फंक्शन g of t, which is in this case this exponential, g of t है लेकिन ये यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है, इज मल्टीप्लाइड विथ शिफ्टेड इम्पल्स. शिफ्टेड इम्पल्स ये, ठीक है. तो ये वाला फंक्शन है जो कि शिफ्टेड इम्पल्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी वुड बी सिंपली इक्वल टू जी ऑफ टी नॉट. जी ऑफ टी नॉट मीन्स ई पावर जे ओमेगा नॉट. तो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्स ऑफ टी वुड बी इक्वल टू ई पावर जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है. तो ये हमारा फंक्शन आया, टाइम डोमेन फंक्शन, ठीक है, जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है. तो वी कैन से द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आर इम्पल्स फंक्शन स्पाइक्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. नाउ वी हैव अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर. वो पेयर क्या है, ई पावर जे ओमेगा नॉट टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आएगी, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई की फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आएगा, या डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आएगी, ठीक है. इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहते हैं. और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है ये यूज़ होगा फ्रिक्वेंटली फॉर डिटरमाइनिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स. पीरियोडिक सिग्नल्स को जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, ये पेयर हम यूज़ करेंगे, ठीक है. तो दिस रिजल्ट एज आई टोल्ड यू विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन एंड अदर पीरियोडिक फंक्शन दैट एक्चुअली आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड कोसाइंस. So let's find out the Fourier transform of sin ओमेगा नॉट टी. sin ओमेगा नॉट टी जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करने के लिए
हम क्या करेंगे, वी नो यूजिंग यूलर्स फार्मूला साइन ओमेगा नॉट टी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, राइट, ई पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2j. नाउ यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म पेयर ई पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये आता है. तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये आएगा, ठीक है, इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, ई पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई अलग और माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई अलग, ठीक है. तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया पाए के साथ. तो पाए हमने जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर रख दिया और जे को हमने बाहर रख दिया, और ई पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई, ये इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस एंड दिस वन आल्सो लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस. अब ये जो पेयर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, वो डायरेक्टली यूज करेंगे. इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा ये आएगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट में नेगेटिव साइन है, तो ये आएगा डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है. या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जे, जे के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें. तो जब जे के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जे अपॉन पाई जे अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है, पाई जे अपॉन जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यू ऑलरेडी नो. तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है. तो जस्ट टू सिंप्लीफाई फर्दर, क्योंकि डिनोमिनेटर में इमेजनरी नंबर है तो हमें उसको सॉल्व करना, तो हमने उसको टू गेट रिड ऑफ द imaginary number from the denominator, we have actually multiplied with its conjugate, right? Multiply and divide by its conjugate. तो ये इससे further simplification हो जाएगी, nothing will not get anything else, right? अब हम we can use this pair, जैसे ये जो है e पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई, ये e पावर जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 पाई का होता है डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. सिंस वी हैव नेगेटिव इन द एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट. इसी तरह इसका जो आएगा ये आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. सो नाउ वी हैव यू नो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एज जे पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है. अब हमारे पास दो स्पाइक आई हैं, एक प्लस ओमेगा नॉट पे, दूसरी माइनस ओमेगा नॉट पे, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, जे पाई. सो वी हैव फॉर एग्जांपल साइन ओमेगा नॉट टी, जबकि ओमेगा नॉट जो है वो 3 है. तो दिस इज द साइन वेव इन टाइम डोमेन, और इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी प्लॉट करें तो दो स्पाइक आएंगी, एक आएगी प्लस ओमेगा नॉट पे, दूसरी माइनस, एक 3 पे, दूसरी -3 पे, ठीक है, क्योंकि ओमेगा नॉट यहाँ पे 3 है तो ओमेगा नॉट 3 पे आई और -3 पे आई. तो ये 2 स्पाइक्स, एक प्लस ओमेगा नॉट, दूसरी माइनस ओमेगा नॉट. प्लस ओमेगा नॉट वाली पॉजिटिव है, इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव जे पाई है तो पॉजिटिव जे पाई है. इसका एम्पलीट्यूड क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो माइनस जे पाई आएगा, इट वुड बी माइनस जे पाई एट ओमेगा नॉट. जो डिलेड फंक्शन है और जो एडवांस फंक्शन है उसका प्लस जे पाई है, ठीक है. तो दिस इज हाउ द फोरियर ट्रांसफॉर्म or the spectrum of a sinusoidal waveform look like, ठीक है. You can find out the Fourier transform of cosine function exactly the same manner जैसे हमने किया. So that is end of the lecture number 18 and 19, and if you have any queries you can contact me using my email address. Thank you very much.